Good morning, students. My name is Ekam Singh. I am Math Master at Government Senior Secondary School, Channu. In the previous lectures about polynomial, we have discussed about the definition of polynomial, types of polynomial, and degree of a polynomial. In the next lesson, we have discussed about the sum of zeros, product of zeros, and their relationship. In today's lecture, we will discuss about long division of a polynomial, ਬਹੁਪਦ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਾਂ ਬਹੁਪਦ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਾਂ ਬਹੁਪਦ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ तो की भाव है। इफ f(x) and g(x) are any two polynomials with g(x) not equal to 0, then there exists unique polynomial q(x) and r(x) such that जेकर f(x) ਅਤੇ g(x) कोई भी दो polynomial होण जिथे g(x) 0 ਦੇ बराबर ना होवे तां इत्थे एक ਵੱਖਰਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ क्यू(x) ਅਤੇ r(x) ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗजिस्ट ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। f(x) = gx ਮਲਟੀਪਲਾਈ क्यू(x) plus r(x) where r(x) = 0 or degree of r(x) less than degree of gx। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ r(x) है ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ r(x) ਦੀ ਡਿਗਰੀ gx ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਫਾਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਪਦ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਨਸ। ਡਿਵਾਈਡ, divide highest term in the dividend by the highest term in the divisor। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਭਾਗਫਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਵਰੀ ਟਰਮ ਇਨ ਦਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਬਾਏ ਦਾ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ। ਜੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਨੀਥ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਿਦ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਲਾਈਨਡ ਅਪ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੇਮ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਟਰੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਬਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਇਨ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਇਟ next to the remainder to form a new dividend। subtract product from the dividend। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਾਂ ਭਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ, ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਇਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਫਾਰਮ ਏ ਨਿਊ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਭਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਫਾਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਹੁਪਦ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
एफ एक्स बराबर है जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जो साडा एफ एक्स है उसनूं असीं डिविडेंट जां भाज बोलते हाँ, जो साडा जी एक्स है उसनूं असीं डिवाइज़र जां भाजक कहते हाँ, जो साडा क्यू एक्स है उसनूं असीं कोशेंट जां भागफल कहते हाँ, जो साडा आर एक्स है वो रिमाइंडर जां बाकी है। इसलिए जेकर असीं डिविडेंट पता करना होवे तां असीं डिवाइज़र नूं कोशेंट नाल मल्टीप्लाई करांगे ते रिमाइंडर उस दे विच जोड़ देवांगे। भाव भाज नूं पता करन दे लई भाजक अते भागफल दी गुणा करनी है अते बाकी उस दे विच जोड़ा जावेगा। इस नूं असीं बहुपद वंड एल्गोरिथम जां डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल्स कहते हैं। हाँ जी, हुण डिविडेंट पी एक्स बाय जी एक्स वेयर डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ जी एक्स। हुण जे असीं डिवाइड करना होवे एक रकम पी एक्स नूं जी एक्स नाल, जिथे पी एक्स जिसनूं भाग किया जाना है ते जी एक्स जिस दे नाल भाग किया जाना है, तां पी एक्स की जो डिग्री है वो जी एक्स नालों वड्डी होनी चाहिए है। इफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 दैन डिवीजन इज कंप्लीट। जे भाग करन ते साडा आर एक्स रिमाइंडर या बाकी 0 आ जाए तो साडी भाग पूरा हो जाएगा। इफ आर एक्स नॉट इक्वल टू 0, जे आर एक्स साडा 0 के बराबर नहीं आउंदा तां इफ डिग्री ऑफ आर एक्स लैस दैन डिग्री ऑफ जी एक्स दैन डिवीजन इज कंप्लीट। जे आर एक्स जो साडा बाकी आया है उसकी डिग्री जी एक्स नालों छोटी होवे तां साडी डिवीजन पूरी हो जाएगी। इफ डिग्री ऑफ आर एक्स ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ जी एक्स, जे साडा जो आर एक्स या बाकी बचा है उसकी डिग्री जी एक्स नालों अपने कोल ज़्यादा है तां फिर असीं दोबारा डिवाइड करांगे। हाँ जी, हुण सबट्रैक्ट डिवाइड द पॉलीनोमियल पी एक्स बाय द पॉलीनोमियल क्यू एक्स, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। हुण असीं दो रकमां दी भाग करांगे, भाग करन तो बाद असीं उस दे विच कोशेंट अते रिमाइंडर पता करना है कि वो साडा किन्ना आवेगा। हुण जेकर असीं एक्स दी 4 माइनस 3x दी 2 प्लस 4x प्लस 5 नूं एक्स दी 2 माइनस एक्स प्लस 1 नाल भाग करना होवे तां असीं जो साडी डिविडेंड है जां कह लो भाज है ते जो साडा डिवाइज़र जां भाजक है उन्हां दी पहली संख्या नूं आपस दे विच भाग करांगे। इस तरीके नाल असीं एक्स दी 4 नूं एक्स दी 2 नाल भाग करांगे। जदों एक्स दी 4 नूं एक्स दी 2 नाल भाग किया जाता है तां एक्स दी 2 आवेगा। हुण जो साडा एक्स दी 2 आया उसनूं असीं जो साडा भाजक जां डिवाइज़र है उस दियां सारियां रकमां दे नाल गुणा करांगे। एक्स दी 2 नूं हुण असीं एक्स दी 2 माइनस एक्स प्लस 1 नाल गुणा करांगे तां जदों एक्स दी 2 नूं एक्स दी 2 नाल गुणा करिया जाएगा तां एक्स दी 4 बनेगा, क्योंकि गुणा करन ते जो साडे पॉलीनोमियल्स हुंदे हन उन्हां दीयां घातां दा जोड़ हो जाता है। इस तरह जदों असीं माइनस एक्स नूं एक्स दी 2 दे नाल गुणा करांगे तां एक्स दी 3 बन जाएगा, क्योंकि एक्स दे उत्ते 1 घात है, एक्स दी 2 दे उत्ते 2 घात है, तो उन्हां दीयां घातां दा जोड़ करके एक्स दी 3 बनेगा। हुण जदों असीं एक्स दी 2 नूं 1 नाल गुणा करांगे तां एक्स दी 2 आवेगा। हुण असीं इन्हां रकमां नूं जो साडा पहलां वाली रकम है जिसनूं असीं भाज या डिविडेंट कहने हाँ उस दे नीचे लिखना है, तो लिखते समय असीं लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। हुण असीं एक्स दी 4 दे नीचे एक्स दी 4 ते एक्स दी 2 दे नीचे एक्स दी 2 लिखांगे, क्योंकि हुण उपरली रकम दे विच एक्स दी 3 नहीं है तो उसनूं असीं बाहरले पासे कढ के माइनस एक्स दी 3 लिखांगे। उस तो बाद असीं इस दियां निशानियां नूं बदलांगे। एक्स दी 4 प्लस 10 सी तां माइनस का हो गया, एक्स दी 2 प्लस 10 सी तां माइनस का होया, इस तरह एक्स दी 3 भी माइनस तो प्लस का बन गया। हुण एक्स दी 4 नाल एक्स दी 4 नूं कट्टता,
उस तो बाद -3x2 -x2। हुण जदों असीं इन्हां दा जोड़ करांगे -4x2 आवेगा। फिर इस तरह हुण इस तो अगे जो साडी x की 3 सी उहनूं असीं अगे लिखांगे। उस तो बाद -4x2 4x नूं नीचे उतारांगे प्लस दा 5। हुण असीं दोबारा फिर इस स्टैप नूं दोहरावांगे क्योंकि जो साडा बाकी रिमाइंडर बचिया है उसकी घात 3 है। जो साडा डिवाइज़र या भाजक है उसकी घात 2 है क्योंकि बाकी की घात जो है वो भाजक नालों या डिवाइज़र नालों ज़्यादा है, इसलिए डिवीजन नूं रिपीट किया जाएगा। हुण दोबारा फिर x की 2 पहली रकम है, दूसरे पासे x की 3 पहली रकम है, तो असीं x की 3 नूं x की 2 दे नाल भाग करांगे तो साडा x आया। इस x दे नाल हुण असीं बाकी दियां तिन्ने ही रकमां नूं गुणा करना है। हुण x नूं x की 2 नाल गुणा करके x की 3 जो कि x की 3 दे नीचे लिखा जाएगा। हुण x नूं -x नाल गुणा करके -x की 2 जो कि -4x की 2 दे नीचे लिखा जाएगा। फिर x नूं 1 नाल गुणा करके x जो कि 4x के नीचे लिखा जाएगा। हुण असीं इन्हां नूं लाइक टर्म्स के नीचे लिखा है। उस तो बाद असीं इस दीयां निशानियां चेंज कीतियां। जो x की 3 प्लस का सी वो माइनस का हो गया, जो x की 2 माइनस का सी वो प्लस का होया, जो x प्लस का सी वो माइनस का हो गया। इस तो बाद x की 3 नाल x की 3 नूं कट दिता गया तो -4x की 2 प्लस x की 2 तो इन्हां दा घटाओ होवेगा। घटाओ करके 3x की 2 आया क्योंकि माइनस की रकम वड्डी है तो निशानी माइनस की आवेगी। उस तो बाद 4x चों -x 3x रहा, 4x प्लस का है तो उसकी निशानी प्लस की आई, प्लस का 5। फिर दोबारा इस चीज़ को रिपीट किया जाएगा। हुण असीं -3x की 2 जो पहली रकम है तो x की 2 जो डिवाइज़र की पहली रकम है उन्होंने भाग करांगे। हुण -3x की 2 नूं x की 2 नाल भाग करके -3 आया। इस -3 दे नाल असीं अगे फिर गुणा करांगे। हुण -3 दे नाल x की 2 नूं गुणा किया गया तो -3x की 2। हुण -3 दे नाल -x नूं करिया +3x, फिर -3 नाल 1 नूं गुणा किया -3। हुण असीं इन्हां दीयां निशानियां बदलियां, जो -3x की 2 आया वो प्लस का हो गया, 3x माइनस का होया, माइनस का 3 प्लस का हो गया। तो पहलियां 2 रकमां क्योंकि एक रकम माइनस की है एक प्लस की, वो आपस दे विच कट गईयां। उस तो बाद 5 प्लस का है 3 भी प्लस का है तो उन्हों का जोड़ करके 8 आए। हुण इस रकम दे विच असीं x की 4 -3x की 2 प्लस 4x जोड़ 5 जो कि साडा डिविडेंट या भाज सी उसनूं x की 2 -x प्लस 1 जो कि साडा डिवाइज़र या भाजक सी उसदे नाल भाग कीता। भाग करके साडा जो x की 2 प्लस x भागफल आया तो 8 साडा बाकी आया। हाँ जी, लॉन्ग डिवीजन मैथड। हुण असीं एक होर उदाहरण लैने हाँ। इन दिस मैथड वी विल डिवाइड 3x की 3 प्लस 16x² प्लस 21x प्लस 20 बाय x प्लस 4। हुण इन दिस एग्जाम्पल 3x3 प्लस 16x² प्लस 21x प्लस 20 is our dividend and x plus 4 is our divisor. We will take first term of dividend and first term of divisor. We will divide 3x3 by x. By dividing 3x square will come because from x3 1x will cut down and there will be x square. So 3x square we will multiply 3x square by all the terms of divisor. That means we will multiply 3x square by x by multiplying 3x cube will be there. It will be written down at 3x3 and then we will multiply 4x by
4x by x, 4 by 3x square by 4, there will be 12x square, which will be written down 16x square. Now we will change their signs. 3x3 will become of minus and 12x square will also become minus. Now 3x3 and 3x3 will be cancelled because one is of plus sign and other is of minus sign. Then 16x square plus 12x square minus, they will subtract 16 minus 12, there will be 4x square, because 16x square is of positive sign and is the bigger of the two items, therefore it will be of plus sign. Then we will write 21x and 20. Now our first term is 4x square and first term of divisor is x, so we will divide 4x square by x. There will be 4x as answer. Now we will multiply 4x by x and 4. But when we multiply 4x by x, there will be 4x square, and when we multiply 4x by 4, there will be 16x. Now we will change signs. 4x square will become negative and 16x will also become negative. Now 4x square and 4x square will cancel because one term is of positive sign and other term is of negative sign. Then we will subtract 21x from and 16x, there will be 5x as answer. The sign of this term will be positive, but because the bigger item is of positive sign, and we will write 20. Now we will divide 5x by x, 5 will be the answer. Then we will multiply 5 by x and 4, 5 multiply x, 5x, 5 multiply 4, 20. We will write it down and then change signs. 5x will become negative and 20 will also become negative. 5x and 5x will cancel, 20 and 20 will cancel, and 0 will be our remainder. So when we divided 3x cube plus 16x square plus 20x plus 20 by x plus 4, our remainder will become 0. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल्स। इस दे विच असीं 3x की 2 प्लस 4x प्लस 5 जो असीं पहला ही सम किया है उस दे विच इस दे विच भी उही सवाल नूं सॉल्व करके दिखाया गया है। इसकी तुसीं खुद प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, इस तो बाद असीं अपने कोल हुण असीं इस लैक्चर दे विच डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल या फिर बंड एल्गोरिथम बारे पढ़ लिया है। तो हुण इस सवाल दे विच चैक वैदर द फस्ट पॉलीनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सैकेंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग द सैकेंड पॉलीनोमियल बाय द फस्ट पॉलीनोमियल। हुण असीं इन्हां दे विच जो साडा सैकेंड पॉलीनोमियल है या दूसरा बहुपद है उसनूं पहले बहुपद दे नाल भाग करना है। भाग करके असीं ये देखना है कि जो साडा फस्ट पॉलीनोमियल है उस सैकेंड का फैक्टर है या नहीं। हुण असीं इसनूं जदों भाग करांगे तां असीं ये देखांगे कि जो साडा रिमाइंडर या बाकी है कि वह 0 आउंदा है। जे रिमाइंडर 0 आवेगा तां साडा यह जो साडी पहली संख्या है वह दूसरी का फैक्टर या गुणनखंड होवेगा। जे रिमाइंडर 0 नहीं आवेगा तो उसका फैक्टर या गुणनखंड नहीं होवेगा। तो उम्मीद है कि तुहानूं यह लैक्चर समझ आया होवेगा ते तुसीं इन्हां सवालों की खुद प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।